हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट सर कमल शर्मा जी, जो हैं एसोसिएट डीन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एंड प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इससे पहले कि हम अपनी बात स्टार्ट करें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अबाउट द साइंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। कहने में थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, बट आज सर हमारे लिए इस चीज़ को आसान बनाने वाले, हमारी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के बारे में बेहतर बनाने वाले हैं। तो सर, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय शो। Pleasure is all mine. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप एक बार क्विक इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियंस को, एंड देन वी गेट स्टार्टेड। Well, introduction, if I say, first of all, the person has to be human being. So I am a good human being, I can say. The rest of the people can decide. And I am basically the professional engineer and working in Chandigarh University. Now taking care of IQAC also and strategy and planning. And working from the last more than 18 years or so. So I involved in various various conferences. I'm on TED also, keynote speaker. So I love to speak that if the students can or the people can understand whatever from my learning, because you can learn from somewhere else, somebody else, and from somebody experiences also. Right on. Thank you sir for introducing yourself. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आता है, बहुत बेसिक वन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, जो हम नॉर्मली कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट से लेते हैं, एंड लर्निंग? अब कैसे इन दोनों चीजों को तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बट कहीं ना कहीं मीनिंग में काफी अलग होती है। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस, एंड इसके बारे में आप एक बार हमें देखिए, अगर मैं बात करूँ लर्निंग की, तो 2020 के बाद, कोरोना के बाद, इनफैक्ट लर्निंग टोटली चेंज हो गई है। Okay. अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि वी आर लुकिंग इन अ फिजिकल एनवायरनमेंट, द टीचर्स आर कमिंग और लाइक दिस. So it's all about it. We are talking about the things of learning can be done in a virtual mode also, in a theoretical mode also, in a physical mode also. But education is little bit difficult or different, we can say. Okay. We normally say educated, non-educated people. I would say it's a no learner and learner. Okay. Because you can learn anything, whether you did certain kind of pre-schooling or schooling or higher education or your graduation or post-graduation. But if you're not educated, you don't know how to behave. Right. You don't know how to communicate with anyone. You don't know how to, deal with someone. Right. So that means you're not educated from my perspective. Learning is basically, it can be technology wise, it can be non-technology wise, it can be something, you can learn some software. So you're a good learner. But we cannot say you are an educator. Right. Or you are good educated people. Right. So in recent times, आजकल के टाइम में ये बहुत हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि जी एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है. It's all about how you deal with others, Right. how you treat others. That is very important. So that is the major difference between education and learning. Fair enough, sir. बहुत ही कम शब्दों में आपने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आते हैं, यू आर अ प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। Yes. तो आउट ऑफ सो मेनी स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग, व्हाई डिड यू चूज टू गो विद इलेक्ट्रिकल थिंग, एंड व्हाट डू यू थिंक कि कैसे ये हमारे सोसाइटी में या हमारी डे टू डे लाइफ जो है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्पेसिफिकली क्या रोल रहता है? आजकल देखिए CSE की डिमांड है. एवरीबॉडी वांट टू बिकम अ CSE इंजीनियर. मैं थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पे लेता हूँ. If somebody is having a laptop and desktop and we are still sitting in a studio and we are doing a podcast, without electricity, how you can perform? You cannot. So electrical basically is electrical is the mother of all engineering, mechanical, civil, yes. But without electricity, how you will perform? Your battery won't sustain. Right. Your system won't sustain. So you have to deal with electrical engineering. Yes, CSE is very, very important. I teach students and I normally say the CSE is basically giving you the optimal solution. हर problem का एक solution आपको मिल जाएगा. But without electricity, what you will do? Right. आपकी lights नहीं चलेंगी. So it was my passion and my father was from the same branch. So I am from PEC, Punjab Engineering College. Okay. So at my point of time, I was feeling very good. In fact, I did certain kind of certification in CSE. But yes, electrical engineering, what I choose, it's my passion. Okay. So I would say to every student, go with your passion. Don't go with a rat race or I want to become this, want to become this. Because ultimately passion matters. Right on. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब हम बात करते हैं तो कोई भी नॉर्मल पर्सन जो समझता है वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है ना, बट कहाँ तक जाती है चीज, मतलब इसका रेंज क्या है? इसकी रेंज बहुत है. ये सिर्फ AC DC तक नहीं है, मोटर्स तक नहीं है, जनरेटर्स तक नहीं है.
देखिए, जब हम आजकल थोड़ी सी बात होती है कि हम ऑटोनोमस ग्रिड की बात करते हैं। एक ऑटोनोमस ग्रिड होती है जिसे हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर पाएं। राइट। मतलब हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नहीं है, हम सोलर की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ रहा है। तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स बहुत बन रहे हैं। राइट। जैसे अगर मैं आज मोदी गवर्नमेंट की बात करूँ या गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव की बात करूँ, दे आर सेइंग कि डोंट टेक जॉब्स, राइट। गिव जॉब्स। राइट। अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेजर रीजन मैं जो मान के चलता हूँ कि आप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर अप टू। राइट। You are doing engineering, you are like, I am a doctor also, so you are doing PhD, you are doing engineering, but what is the outcome? आप इतना पैसा लगाओगे, बच्चे को पढ़ाओगे, उसके बाद उसका पैशन नहीं है, उसको पता नहीं उसने क्या करना है, he will get a job of 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 12 lakhs, 20 lakhs even, but still he won't excel. तो ये बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पर्सपेक्टिव की बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेके ग्रिड तक, ग्रिड से आगे अगर हम बात करें तो जो आज एक नासा एक प्रोजेक्ट चला रहा है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तक, हम सीधी आपकी लाइटनिंग जो आपकी स्ट्राइक होती है वहां से सीधी इलेक्ट्रिसिटी लेके आना चाहते हैं अर्थ के ऊपर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहे आपके पास। तो पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कैसे उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वहां पे जब इलेक्ट्रिकल चीज की बात आती है तो सर एक निकोला टेस्ला नाम आता है जी। तो हाउ डू यू मतलब आपका उनके बारे में क्या सोचना है? आप क्या सोचते हो कि अगर जो भी उनकी इन्वेंशंस थे जी, या जो करना चाहते थे जी, अगर वो सक्सेसफुली हो पाती तो क्या चेंज होता सोसाइटी में? अगर वो इन्वेंशंस हो जाती और वो कर पाते, बिकॉज ही वाज अ डाई हार्ड पैशनेट पर्सन अबाउट टेक्नोलॉजी, सो आज हम शायद 50 इयर्स आगे होते। राइट। जो अब अभी हम हैं, जो हम टेस्ला की बात करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक चार्जर की बात करते हैं, वो बेसिकली उन्हीं की इन्वेंशन से है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो हम 50 साल तो मिनिमम आगे होते जो अभी हम हैं। अभी भी जो हम सोसाइटी में हैं उसमें भी निकोला टेस्ला की इन्वेंशंस के बेनिफिट्स हम ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत। जो अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की बात कर रहे हैं, हम बाई डायरेक्शनल फ्लो की बात कर, टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ, बाई डायरेक्शनल फ्लो की बात अगर सिंपल भाषा में बात करो तो ग्रिड से जो एनर्जी आ रही है वो आप व्हीकल को दे रहे हैं, व्हीकल से जो एनर्जी आ रही है वो आप ग्रिड को दे रहे हैं, और ऑटोमेटिकली वो दोनों कंट्रोल हो जाएंगी। तो वो जो कंसेप्ट था उनका, जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की जो हम बात कर रहे हैं, जिसपे काम चल रहा है आजकल, स्ट्रेटोस्फेयर से लाइटनिंग स्ट्राइक होके हम सीधी एनर्जी ले सकें, वो भी उनकी इन्वेंशन का एक पार्ट ही था। तो अगर हम बात करें तो 50 साल आगे होते हैं मिनिमम। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो मुझे ध्यान है, आई न्यू अबाउट इट फ्रॉम अ यूट्यूब वीडियो, जहाँ पे कोई पर्सन बता रहा था कि अगर हम वो लाइटनिंग वाले इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर कर सकें तो वो विल बी मोर देन इनफ, जो पूरी दुनिया की कंजप्शन है उससे कहीं ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बट वो थोड़ा डेंजरस है, दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज टेकिंग सो मच टाइम। अगर हम डायरेक्ट ले आएंगे और आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है खत्म हो जाएगी तो फिर हम मार्स जैसे हो जाएंगे। राइट। तो वो एक चीज है, उस दे आर वर्किंग ऑन इट। तो एडवांटेजेस के साथ में कुछ रिस्क हैं, उसको मिटिगेट करने बिल्कुल, और बहुत बड़े रिस्क है। पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर ही हट गया अर्थ का तो पता लगे फैसिलिटी के चक्कर में आपने सब गवा दिया। वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। ओके। एक सर आपकी फील्ड से रिलेटेड चीज है बिल्कुल, जो आज के टाइम पर बहुत बूम कर रही है, दैट इज ईवीज। यस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कार्स के बारे में लोगों के बहुत सारे अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई ठीक है कि पेट्रोल डीजल नहीं यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, बट अगेन बिजली जनरेट करने के लिए भी कहीं ना कहीं बैक एंड में कोल यूज हो रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है, एंड व्हाट वुड यू लाइक? देखिए, हर टेक्नोलॉजी का प्रोज कॉन्स होते हैं। बिल्कुल, हम ये मान के चले, मोबाइल का भी प्रोज कॉन्स बहुत हैं। आप क्या देखना चाहते हैं मोबाइल पे, वो आप पे है। सही है। आप स्पिरिचुअलिटी देखना चाहते हैं, आप कुछ और देखना चाहते हैं, वो आप पे है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं बात करूँ तो उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग के प्रॉब्लम्स हैं, अभी बूम कर रही है। और जैसे गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है कि 15 साल से ज्यादा आपकी डीजल की कार नहीं चलेगी, तो उसके प्रॉब्लम है। बट आप ये देखिए कि उसके आने वाले बेनिफिट्स क्या हैं। आपके सारे फॉसिल फ्यूल्स हम आपके लिमिट हो जाएंगे किसी पॉइंट के ऊपर, फिर आप क्या करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो हमारी इलेक्ट्रिकल कार्स हैं, उनकी एफिशिएंसी आ रही है, बट हाँ उसके लिए टाइम चाहिए अभी। तो हर चीज के, जब हम कोई टेलीविजन भी आया था या चैट जीपीटी आया या एआई आया, तो हम कहते हैं चीज के नुकसान है, बट उसके फायदे बहुत हैं। वो आपने देखने हैं, फायदे कैसे लेने हैं, नुकसान कैसे लेने हैं। तो हाँ, बूम कर रहा है अभी और कंपनीज आ रही हैं, इंडिया ग्रोइंग स्टेज पे है, और इंडिया के लिए बेस्ट पॉइंट टाइम है ये, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जैसे हमारी आजकल इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रही हैं चंडीगढ़ के अंदर। तो और एक अभी स्वीडन के अंदर एक पूरी इलेक्ट्रिक चार्जिंग रोड बनी है, जैसे आपके व्हीकल चलते चलते चार्ज हो जाएंगे।
अच्छा, they Okay. in Sweden it's a very new thing, so they are working on it. So Okay. वो टाइम दूर नहीं है, इंडिया के अंदर भी ऐसा होगा. हम्म, तो देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, बट मैं कहूँगा एडवांटेज ज़्यादा है. राइट. और जिस चीज में एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज से, वो हमारे लिए अच्छा है. बिल्कुल Simple. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. इसके लिए ना एक देयर इज अ बिलियनर, वो क्या, रे डेलियो, ठीक है, वो एक हेज फंड मैनेजर है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. उनका एक बड़ा अच्छा कोट है, वो कहते हैं कि नॉर्मली हमें लगता है कि दो ऑप्शंस में से वो ऑप्शन अच्छा जिसमें कोई कमी नहीं है. वो कहते हैं कि दो ऑप्शंस में से जिसमें कम कमी है वो बेस्ट ऑप्शन है. बिल्कुल. तो दैट इज व्हाट यू आर यस सेइंग. यस. देखिए कमियां तो सभी में है, कोई सभी. परफेक्ट तो है नहीं, नहीं है. बट हाँ अगर आप उसके एडवांटेजेस काउंट करें तो ज़्यादा हैं और हमें उसको फॉलो करना चाहिए. फॉलो करना चाहिए ऑब्वियसली, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है. ऑप्शन भी नहीं. तो सर हम वापस आते हैं एजुकेशन की तरफ थोड़ा. जी. तो आप एसोसिएट डीन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, विच इज वन ऑफ द, आई वुड से कि मोस्ट प्रेस्टिजियस अमंग अवर, एटलीस्ट जो हमारा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम आसपास में रह रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बहुत तेजी से उभरता हुआ यूनिवर्सिटी और कॉलेज है. तो आप इंडियन एजुकेशन को जो वेस्टर्न या जो बाहर यूएस और जो टॉप टायर 1 कंट्रीज हैं उनसे कैसे कंपेयर करते हैं, एंड डू यू बिलीव कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बेटर देन देयर्स? देखिए मैं बाहर जाता रहता हूँ. फिलीपींस के अंदर आई गेव वन वर्कशॉप फॉर 5 days. ओके. तो मैं ये कहूँगा हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जहाँ से शुरू हुआ है, अगर हम गुरुकुल तक चले जाएं, आर्यभट्ट तक चला जाएं, तो एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. पर हाँ अगर आप इन्फीरियरिटी का कम्प्लेक्स ले आएंगे, ये सोचेंगे वो बेटर हैं, वो अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. आपने समझना है कुछ. अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, आई एम टेकिंग IQAC आल्सो राइट डाउन. ओके. सो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल. सो देखिए बात ऐसे सिंपल सी समझनी पड़ेगी कि अगर आपको विजन क्लियर है तो आपको मिशन क्लियर है, आपको अपना टारगेट दिख रहा है, ठीक है, तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम से आप उसको अचीव कर सकते हैं. पर अगर आपको पता ही कुछ नहीं है, आपको नहीं पता, जैसे आजकल लोग बड़ी उसमें रहते हैं, भ्रांतियों में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं, जी हमारे इंडियन सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं इंडिया के अंदर. ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में अभी पीछे एक गवर्नमेंट का डिसीजन भी आया, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ रही हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत का, कि हमारे पास 5 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे. ओके. So they are having this kind of, that means students will come over here. So दोनों अगर हम बाहर के सिस्टम और यहाँ के सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकें तो इंडिया नेचुरली एक विश्व गुरु बन जाएगा. तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम वहां से स्टार्ट हुआ है कि आप अपने अंदर देखिए, इंडियन सिस्टम के अंदर एक थोड़ी सी चीज है, लोग उसको समझ पाते हैं नहीं समझ पाते. जो मैंने समझा है कि हम अंदर ज्यादा झांकते हैं, हम बाहर नहीं झांकते. राइट. तो हम अपनी इनर सेल्फ को ज्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं. जैसे स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ. तो अगर आप अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है आपके लिए. सही है. आपको बाहर कुछ नहीं दिखाना, आपको अंदर ही दिखाना है और अपने अंदर को ही सुधारना है. तो मैं नहीं सोचता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं पीछे है. यूएस रैंकिंग की बात करें, वी आर गोइंग गुड. अगर मैं बात करूं एक स्टैटिस्टिक्स के, तो वी आर गोइंग गुड. और आने वाले टाइम में अगर मैं सोचता हूं कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, वी विल डेफिनेटली बिकम अ विश्व गुरु. अभी आपने टर्म यूज किया विश्व गुरु, जो हमें कहा जाता है और इंडिया को माना जाता है कि भारत हमेशा से एक विश्व गुरु रहा है. जी. ठीक है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो वो चाणक्य वाले और जो आर्य भट्टाचार्य वाले जो रहे थे, कहाँ सर आपको लगता है कि जो इन्वेंशंस हुई, जितनी भी चीजें आज के दिन में हम जानते हैं, मैक्सिमम बाहर हुई हैं. जी. मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में हुई हैं. तो जब चीजें का ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहते हैं कि इवन मैकाले और वो सब जो थ्योरियां जो चलती हैं कि यहाँ से सारी चीजें ले गए और वहां उन्होंने बनाई. तो आपका इसके बारे में क्या टेक है, पहला क्वेश्चन. एंड सेकंड इसका पार्ट ये है कि जब हमने ही सब चीजें स्टार्ट करी, हमसे लोगों ने सीखा, तो हम क्यों नहीं हम उस लेवल का एडवांसमेंट कर पाए, या फिर हम एक बार इसके बारे में बताएं सर. देखिए आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे. देखिए पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा इस पे, बट देखिए बात ऐसे है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जब हमारे पास थी बिहार में और हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं अब, तो उस टाइम जब हम गुरुकुल की, अपने गुरुकुल की बात करते हैं इंडिया में, तो कहीं गुरुकुल नहीं थे. सिविलाइजेशन जब हमारी ग्रो कर चुकी थी, उस टाइम सिविलाइजेशन और कंट्रीज में इतनी नहीं थी. ठीक है. अगर मैं वैसे बात करूं माया सिविलाइजेशन की,
तो वो कह रहे थे कि 2000 के अंदर पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, पर अभी हम चल रहे हैं। सो देखिए, जो हमारी यहाँ इंडिया के अंदर रहा है, जो मुझे लगता है उन्होंने अंदर की खोज ज्यादा करी, अध्यात्म की खोज ज्यादा करी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा मूव हुए। उन्होंने वो बाहर शो करने की कोशिश नहीं करी। ओके। अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी तो हमारे यहाँ हो रहा है, इट इज नॉट पेटेंटेड इन इंडिया। हाँ। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी उसके लिए फाइट की और वो वापस लाए। सो हमने किसी चीज को पेटेंट करने की कोशिश नहीं करी। अगर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां चाइना के लोग भी आ रहे थे पढ़ने, और जगह से भी लोग आ रहे थे। बिल्कुल। तो हमने हमेशा देने की कोशिश की, हमने कभी उसको सीमित करने की कोशिश नहीं करी। सो दैट इज द ओनली रीजन दैट वी कैन से दैट विद दिस मैकाले, जो हमारी एजुकेशन नीति चल रही है, जो भी चेंज हुई है एनईपी के थ्रू, तो पुरानी चल रही थी। तो दैट इज, वी कैन से दैट इट इज नॉट वेरी मच, वी नेवर इनकलकेटेड। अगर मैं अपने पंजाब की बात करूं, पंजाब में बैठे हैं आज, तो दसवंत की बात चलती है, एक गुरु ग्रंथ साहब जी में दसवंत की बात होती है। तो जो दसवंत की बात होती है, क्या हमने उसके अपने आप को जोड़ने की कोशिश करी? आई डोंट थिंक सो। क्या हमने उन चीजों को अपने साथ जोड़ा जो हमें सीखा गया? हमने वेदा से सीखा, उपनिषद से सीखा, गुरु ग्रंथ साहब जी से सीखा? नो। तो मुझे ये लगता है कि हमने इंटीग्रेशन अपने साथ नहीं करके रखी, हमने अपने आप को फ्री कर दिया, चीजों को छोड़ दिया, और फिर आपको पता ही है, जब आप चीजों को छोड़ोगे, अपनी उस पे ओनरशिप नहीं लोगे या तो लोगों को नहीं बताओगे, तो यस, करेगा, तो आप अपनी जनरेशन को नहीं बताओगे। मुझे नहीं लगता आजकल की जनरेशन में अगर आप मंदिर कोई जाता है या गुरुद्वारा साहब कोई जाता है, उसको ये पता होगा क्या करना है, कैसे करना। बहुत कम जनरेशन को पता होगा, आई एम नॉट अवेयर। बिल्कुल। बट अगर आप उनको अभी नहीं बताओगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आके कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ बताएगा, और फिर आप उसको समझ नहीं पाएगा, और वो उसको फॉलो करेगा, कि वो यही सोचेगा कि यस वी आर इंफीरियर। यस, सो आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन दैट वी डिडंट गिव आवरसेल्व्स टू द न्यू जनरेशन। ओके। तो बेसिकली समरी आप जो कह रहे हो उसका मुझे लगता है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि हमारे पास सारी चीजें थी और हमने अंदर ज्यादा झांकने की कोशिश करी, और मेटेरियलिस्टिक थिंग या जो बाहर की जो सक्सेस है उसको हमने कभी भी, वैसे भी इंडिया ने या हमारा जो भारत जो अपनी नीति चलती आई है शुरू से, कि उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे भगवत गीता जो पूरी चीज एलोबरेट करता है, जो समझाते हैं, तो उस थ्योरी पे हम रहे। और दूसरे कहीं ना कहीं की जो भी हमारे पास नॉलेज थी, हमने कभी भी उसको बाउंड करके अपने तक ही नहीं रखने की कोशिश करी। हमने जो विश्व गुरु, एक्चुअल में गुरु जो करता है अपने शिष्यों के लिए कि सबके साथ में आप ज्ञान बांटते हो, तो वो इंडिया ने किया। लेकिन बाहर वालों ने उसके ऊपर जो भी अपने पेटेंट्स और वो सब जो नीतियां लगाई, वो चीज की। ओके। तो अब जब हमने सर बात करनी स्टार्ट की है कि इनर थिंग की, तो वहां पर टर्म आता है मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। तो जैसा कि मुझे अभी जानकारी है कि आप इन चीजों को बहुत सीरियसली लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो इसके बारे में हम एक बात करेंगे। आप हमें बताएं कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी समझना और ऑडियंस के लिए भी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड द रिलीजन? इस पे हम अगर बात कर देखिए, इसमें बहुत, मैं अपने चैनल पे भी डालता हूँ, क्योंकि मैंने आई डेडिकेटेड माय चैनल टू माय फादर, तो उसके ऊपर चीजें मैं डालता हूँ। मैं संकीर्तन की, जब हरि नाम संकीर्तन की बात होती है, इट्स अ साइंस ओनली, बट यस, दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। जो हमने बात की स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की, देखिए एक गीता में श्लोक आता है, श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। सो इट एक्चुअली मीन्स, अगर मैं इसके अनुवाद करूं, कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो जब शरण की बात आती है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट धर्म इज बेसिकली द वे ऑफ लिविंग। हाउ बेसिकली धर्म के अंदर आपको यही बताया गया है कि कोई भी धर्म हो, कि ये अच्छा है, ये बुरा है। That means you have to do a certain way of thinking. You have to do a certain good practices, so that you can make your life good. Okay. So spirituality is for yourself only. ठीक है। Religion से आप किसी और का भला कर सकते हो, fine. You are doing a good practices. But yes, spirituality will only help you out. Okay. That means you will only help yourself. Like meditation, if you talk about meditation, a different type of meditation. ठीक है। It's for your mindfulness. It's for your what I can say, inner presence. But spirituality is totally different. Okay. Yes, they can go hand in hand. Religion and spirituality can go hand in hand. But at certain point of time, spirituality is related with the individuality. Okay. And religion is basically for the mass. For the mass, or you can teach someone, you can, what I can say, अपने practices से आप किसी को समझाने की कोशिश कर सकते हो. That is one. Okay.
Okay. Okay. So, like in Sanatan, if we talk about Sanatan and Hinduism and Sikhism and other religions, so basically Sanatan is one that talk about uniqueness. Okay. So spirituality is basically related with that, and religion is basically talking about the way of living. ठीक है, ठीक है। तो जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि मेडिटेशन इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? अब मैं मान लो कि कुछ नहीं जानता इस चीज के बारे में, लेकिन ठीक है, ये बात सुन के मुझे लगा कि यार करना तो चाहिए एक बार, जब सर बोल रहे हैं और इतना एजुकेटेड पर्सन अगर कोई बात बोल रहा है तो ऑब्वियसली वी शुड एटलीस्ट कंसीडर। तो मुझे अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, सीखना है, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कैसे उस चीज में स्टार्ट किया जाए एंड कैसे इसको मोमेंटम बनाया जाए? देखिए, इसमें बहुत पॉइंट्स आते हैं। वैसे आई एम नॉट गुरु ऑफ मेडिटेशन, बट यस, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, आप ध्यान लगाने की कोशिश करें। एक चीज होती है त्राटक, यू कैन चेक इट आउट। त्राटक इज बेसिकली putting a point on a wall and you Okay. keep seeing that particular point until the point your tears are coming from your eyes. ओके, So that means your concentration would develop. ठीक है। And meditation, you will see the black spot, then you will see the white spot, and then you keep on thinking. So there are the various levels of meditation. ठीक है, But yes, meditation can be done with yourself also, with the help of someone who is already good in that particular activity. so do you know about any institution or the various institution, but I didn't went to any institution actually. okay, But yeah, there are various institution. There is one institution in Palampur. I heard many things about that particular institution, but I am not. I didn't went over there. So when I didn't go over there, I can't comment on that. But yes, because I am very, so I don't get time for these kind of things. But yes, in the early morning when you are in a Brahm Muhurat, you are waking up, you can go to your balcony and you can do certain kind of activities which make you fresh. Meditation is basically to make you fresh, so that all the burden you are carrying on your body or on your mind, that can be released. You can feel relaxed. so you are a teacher of science, Yeah. and obviously meditation is also Yeah. a form of science. तो आपके प्रोफेशन में नॉर्मली हम जानते हैं कि दोनों चीजें साइंस है, बट कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पब्लिक है, जी, फॉर देम ये दोनों एक ऑपोजिट चीजें हैं एक दूसरे से, जो जैसा एक आम जनता जो समझती है। तो आपको इस चीज की वजह से अपने कॉलेज में अपने जो अदर प्रोफेसर्स हैं उनके बीच में कुछ लगता है कि मतलब इसकी वजह से कुछ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, या कुछ इस तरीके की चीज? मैं इसको कहूंगा कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपका बड़ा इंडिविजुअल काइंड ऑफ एक्ट है। तो आप अपने में रहें, और है। जो आपको बाहरी काम करना, जो आपको सुनना है या जो आपको करना है, वो करते रहिए। जैसे मैं आजकल प्रेमानंद जी महाराज को काफी सुन रहा हूँ, वृंदावन में है। तो आई लास्ट वीक आई वाज इन वृंदावन। सो जो आपको करना है वो करते रहिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और आपने बेसिकली अपने आप को अंदर से सुधारना है। आपने अपने आप को बेसिकली एक्टिविटी से या अपनी माइंडफुलनेस से अपने आप को रिलैक्स करना है। आप रिलैक्स हो जाएंगे तो आउटकम आपका अपने आप आ जाएगा बाहर। अदरवाइज आप बटन कैरी करेंगे, आप डिप्रेशन की गोलियां खाएंगे, आपको डरमेशिया हो जाएगा या आपको कोई डिजीज हो जाएगी, आप कंफ्यूज रहेंगे, उससे आपका आउटकम भी कंफ्यूज रहेगा। तो व्हाट आई फील, I'm talking with you only. I didn't talk with professors or any of my colleagues over here. But yes, we talk normally whenever we are having a lunch or we are having certain kind of activities together. But what's more important is relaxation. So if your mind is relaxed, your body is also relaxed. Okay. एक बिल्कुल noob level question कि इसके लिए कुछ टाइम स्पेसिफिक है? जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त का भी नाम लिया, तो क्या ये उस टाइम पर ही किया जाए तो इसका बेनिफिट होता है, या कुछ इस तरीके की चीज? देखिए, साइंस भी इसको मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, उस टाइम एनर्जी बहुत, बेसिकली वी आर कनेक्टेड विद द कॉस्मिक एनर्जी। सो मेडिटेशन इज नथिंग बट टू कनेक्ट विद द कॉस्मिक। ठीक है। तो लाइक यू आर कनेक्टिंग योर 7 चक्रास, you are basically your kundalini, you are basically connected with the cosmic, so that the energy can flow in your body and you feel relaxed. Right. So Brahm Muhurat is basically the point where the things are very clear, so you can easily connect. Otherwise, every time is okay. Even in the Sandhya also, like we are sitting right now, so we can in the Sandhya also, basically it's normally says that whenever the sun is at very peak, we should avoid. Otherwise, whenever the sun is at the Brahm Muhurat is basically when the sun is not there. So, or in the Sandhya when the sun is not there.
Chandrama is there, and so in basically like every time I say it's not mythology, it's methodology. That Okay. how you work, because in Mahabharata and Ramayana we normally say the mythology. It's not mythology, it's methodology. How to do Operate. good things in your life, because in Ramayana you have to know what you should not do, or what you can do, Okay. and in Mahabharata you should see that what should not be done. Okay. So in this way time is okay, but in the Brahm Muhurat and in the Sandhya we should perform. ब्रह्म मुहूर्त जब हम बोल रहे हैं जी. तो व्हाट इज एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त, मतलब क्या टाइम को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं? Yeah, it is between normally 3:30 to 4:30. इन द मॉर्निंग. Yeah, half an hour before the sun, Sunrise? sunrise, we can say, more precisely sunrise. ओके. But we can say when the sun, the rays are coming in. So normally half an hour or 1 hour before. ओके, तो बेसिकली जो आप कह रहे हो कि सनराइज से आधा घंटा पहले, जी, तो फिर इसके हिसाब से तो ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बिल्कुल. होना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि ये इंडिविजुअल है. आप देखिए, अब अगर आप उड़ीसा में बैठे हैं या आप किसी केरला हाँ, में वही. हैं या अरुणाचल में जो सन है वो 5:30 नॉर्मली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट बिकॉज C30 इट इज बेसिकली हाफ एन आवर टू 45 minutes और हाफ एन आवर टू 1 hour prior to sunrise. So it totally depends. Okay. So at what time do you practice meditation, and for how long you practice for on a daily basis? I normally don't do much, अच्छा. but sometime I do. Mhm. Not daily. Okay. I think 3 times in a week, Okay. sometimes 4 times in a week. So you can keep it as per your requirement. I would say don't follow, because see, somebody is something doing like 8 times in a week, might be he's so proficient into it, and you will do and you will feel यार कहाँ उठ गया सुबह और कहाँ तंग हो रहा हूँ unnecessary, right? हाँ. So depending upon your convenience and depending upon your capability, you should do. Okay. Okay. Let's go back to the education thing once again. अभी recently I was reading in a newspaper कि IIT के कुछ स्टूडेंट्स के भी जी जो है वो they actually didn't able to get the jobs. जी. तो सर IIT इज अपने आप में सिर्फ इस चीज के नाम से ना, मतलब टन्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपना एक, मैं ये नहीं बोलूंगा धंधा चला रहे हैं, बल्कि दे आर लिटरली मेकिंग करोड्स, टन्स ऑफ मनी. जी जी. एंड उसके बाद जो अगला स्टेप है वहां पीपल आर नॉट गेटिंग इवन जॉब्स. सो आई वुड लाइक टू यू टू कमेंट ऑन दिस मैटर एंड एलॉबरेट. कहना चाहूँगा, देखिए वही बात हो जा रही है कि मैं बार बार यही बात से बात कर रहा हूँ कि वी शुड नॉट इन अ पोजीशन टू गेट जॉब्स, ट्राई टू गिव जॉब्स. ठीक है. जैसे देखिए, अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करूँ कि 10 साल से मोदी गवर्नमेंट ही है, तो अगर मैं बात करूँ तो वो एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. दे आर सेइंग कम विद द पेटेंट्स, कम विद योर कॉपीराइट, कम विद योर ट्रेडमार्क्स, कम विद योर ओन स्टार्टअप्स. आई एम हैविंग 2 startups with the students only. Okay. And it is going good, and it has nothing to do with the engineering. It is basically solving one kind of problem. So basically what important is, yes, IIT Bombay, as you are saying, it was in news, right? Yes. So IITs, yes, the placement is less. It can be due to many reasons, but we should not only focus on the placement, we should focus on skill. Okay. If you are having a skill, definitely you would be placed. If you are not having a skill, even after getting a placement, you would be fired out after 6 months. Nobody knows. Okay. Because new technology will come into the market and you are not knowing that particular kind of technology and you are only cramming out the things, won't work. So I'm not targeting IITs, I'm not targeting NITs, I'm not targeting any kind of institution, but I would say in general the student should get a skill whatever in whatever institution they are. So right now the placements are not going that much good, but we are very fortunate. Chandigarh University having a very good number of placements going on. It depends totally. It depends upon your skill. It depends upon the student skill, basically. Okay. Do you think AI is the reason behind the जो भी चीज़ें अभी फ्रंट एंड में चल रही है? इनफैक्ट जस्ट प्रियर टू दिस पॉडकास्ट आई वाज रीडिंग अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन, तो वहाँ पर ये जो TCS एंड इन्फोसिस, विप्रो, जो टॉप 3 IT कंपनीज ऑफ आवर कंट्री हैं, ऑल टाइम लो चल रहा है. इन सब में हायरिंग कई कंपनीज में फ्रीज हो चुकी है. तो व्हाट इज, मुझे जो लगता है कि AI, क्योंकि सर सी आई एम अ बिजनेस ओनर, आई कैन डायरेक्टली सी कि बहुत सारे काम जो मेरे ऑफिस में अभी जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, डेट कैन बी वेरी इजिली डन विद द जस्ट अ मेयर टूल.
जो मुझे $10 $20 का सब्सक्रिप्शन लेना है और उस पर मुझे किसी पर्सन की 30,000 की जो सैलरी है उसका 80% काम हो जा रहा है, और इट इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अभी तो मतलब कितना टाइम हुआ, 6 महीना 1 साल 2 साल में अभी यहाँ पहुँच गए हैं। तो मुझे लगता है AI, व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन दिस? देखिए, जब कंप्यूटर आए थे तो हाँ जी। लोगों ने बहुत कुछ सोचा थी हमारी जॉब चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल। जॉब गई नहीं, ठीक है। बड़ी। हाँ। देखिए, हाउ यू वांट टू यूज AI, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, इफ यू टॉकिंग अबाउट सर्टेन, अभी एक रोबोट भी बनाया है, अब माया, आई गेस द नेम ऑफ द रोबोट। सो देखिए, डिपेंड करता है आप AI को यूज़ कैसे कर रहे हैं। जैसे अब आप बात कर रहे हैं, कई जॉब्स हैं, जैसे कंटेंट राइटर, making PPT, you will say chat GPT make a PPT of this much words on this particular content, it will make. Yes. But how you will, what are the things you want to take from that particular PPT, वो तो बना के दे देगा आपको. But you require certain things that yes, this should be there in the PPT, this should not be there in the PPT, this is not useful, this is useful. Right. So how you use meticulously AI, that is very very important. I won't say that AI would take our jobs. I would say it would increase. Yes, it will only lessen the burden of you. Okay. If you want to take it in a positive way. Okay. Yes, if you are thinking again that AI will take our jobs, it can take your jobs, but it will only lesser your burden. अगर आप सारा कुछ AI पे डाल दोगे तो फिर वो चीज़ नहीं निकल के आएगी। स्कॉलस्टिक अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, कई AI बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चैट जीपीटी का वर्जन 2021 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ अभी, ठीक है, चल रहा है काम। बट येस, साथ साथ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू टेक द अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाउ यू टेक द प्रॉब्लम्स। सो आई वोंट से जॉब्स वुड गो। थोड़ा जर्क लगता है, जैसे कंप्यूटर आया था तो हमने कहा कि किसी भी चीज़ के आने के बाद में एक छोटा टेम्परेरी जो डिस्टर्बेंस, लोगों ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। लोग कहते आपकी CNC मशीन्स आई, आपने कहा वर्कर्स कम हो जाएंगे। वो CNC सीखने के लिए भी तो वर्कर्स चाहिए, उसको ऑपरेट तो कोई करेगा। सो नेचुरली जॉब्स वोंट गो, बट येस यू रिक्वायर सर्टेन स्किल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। राइट ऑन। एजुकेशन सिस्टम में डू यू थिंक कि जो टेक्नोलॉजीज अभी आ रही हैं उसके बाद में, जैसे पुराने हमारे जो, जब मैंने बीटेक किया, आई वाज इन बीटेक फॉर आई थिंक 2011 से 2015 तक के सेशन में मेरा बीटेक हुआ था। तो वहाँ पर जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक होती, सब्जेक्ट था FCPIT जी। आई डोंट नो अब वो अभी है या नहीं थोड़ा है, नाम चेंज हो गया। अच्छा ओके। तो उसमें जो चीज़ें बताई गई थी ना, वो बहुत ही पुरानी थी। मतलब कि मतलब हम सबको ये लगता था कि जो हम पढ़ रहे हैं ना यार, वो बहुत आउटडेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं जी। तो ठीक है, चीज़ें अपडेट तो होती थी बट बहुत लेट। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को कुछ बेटर करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ उसमें चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे अगर आपने जैसे FCPTI की बात की, वो था कुछ नहीं, कंप्यूटर ही था बेसिकली। हाँ बिल्कुल। तो हमने उसका नाम अब C++ था उसके अंदर, आई गेस। हाँ जी हाँ C++ था, अब उसके अंदर हमने जावा डाला है, उसके अंदर पाइथन डाली है। अच्छा। जैसे अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, हमारे पास मूक्स हैं, स्वयं की बात करते हैं हम लिंक्डइन पे बच्चे कोर्सेज करते हैं। तो देखिए, चीज़ें वही रहेंगी, बट आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स दैट वट एवर यू आर लर्निंग इन योर डिग्री, वेदर इज़ BTech, whether it's BE, it's only peanuts. Okay. They are only basics. ठीक है। उससे बाहर क्या निकल के जाओगे, उसको कैसे यूज़ कर पाओगे, उसको कैसे इलेबोरेट कर पाओगे, उससे क्या नई चीज़ बना पाओगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूँ, तो कोई बच्चा अगर मार्केट में जा रहा है तो उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जनरेटर है, मोटर है, बस। ठीक है। अगर वो पता है तो नेचुरली कंपनी वाले सिखा देंगे उसको। बट येस, इफ़ यू आर नॉट नोइंग द बेसिक थिंग, हाउ यू विल मेक अ बिल्डिंग। सो FCPI जैसे हमने बात की, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो अब हमने उसको पाइथन में कर दिया। आजकल हमारी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, वी इंट्रोड्यूस डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, AR VR। ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। हम रिएक्टर, एंगुलर, बहुत कुछ है। जैसे अगर मेरी बेसिक ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, बट मैं CSE में डील करता हूँ, तो आपको बेसिक स्किल पता होना चाहिए। बेसिक स्किल आपके पास है, आप उसको इम्प्रोवाइज कर लीजिए, चला लीजिए काम। ठीक है। ठीक है। मैंने जिस कॉलेज से बीटेक किया जी, आज वो लगभग बंद होने के कार पे पहुंच गया है। ठीक है। उसके आसपास में बहुत सारे कॉलेजेस थे, या तो किसी के साथ में मर्ज होके किसी तरीके से काम चला रहे हैं, वो वोडाफोन आइडिया टाइप्स में। जी जी। और कईयों ने नाम बदल लिए, कुछ हो गया जी। उसी टाइम पर आप एक बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी आती है जी। ठीक है, और जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं जो कई सालों से चला रहे थे जी, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, एंड यू गाइज आर थ्राइविंग। तो व्हाट यू गाइज आर डूइंग राइट आई वुड से, और दूसरे लोग क्या गलती कर रहे हैं, मतलब उनको क्या सीख लेनी चाहिए, या फिर
इस बारे में मतलब थोड़ा सा बताओ, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वाले भी थोड़ा देखें यार कि हाँ ये शायद हम गलती कर रहे हैं, और मे बी वी नीड टू अडेप्ट, मे बी वी नीड टू चेंज, या मे बी आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहें वट बट मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि उसी टाइम पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आया था, हमें पता चला था कि बसेस वगैरह दिखनी स्टार्ट हुई थी, बैनर्स वगैरह लग रहे थे, हम लोग ऑलरेडी बीटेक कर रहे थे तो, और हमारे कॉलेजेस के कैंपस इतने बड़े, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, और उसके बाद में वो कॉलेजेस आर करंटली सफरिंग वेरी बैड, है ना। तो सर इसके बारे में आप बताएं कि व्हाट यू गाइस आर डूइंग राइट। देखिए, मैं तो कहूँगा हमारे जो चांसलर सर है सरदार सतराम सिंह संधू जी, उनके विजन के कारण ही हम चल रहे हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट हिज विजन ओनली। ही इज़ अ वेरी विजनरी लीडर। एंड एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वो पुरानी चीज़ें देख के बोर हो चुका है। ठीक है, तो हम हर चीज़ न्यू करते हैं, हर चीज़ नई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो मूक्स हो, चाहे वो न्यू वे ऑफ लर्निंग हो, चाहे वो न्यू पैडागॉगी हो, चाहे वो एक नया तरीका हो पढ़ाने का, चाहे वो प्लेसमेंट्स हों। तो वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हो। आई पास्ड आउट इन द ईयर ऑफ 2004। ओके, So I'm a very old guy. So already, what I can say, 20 years gone. So if I say what we learned in 2004, and I am from PEC. उस टाइम जो PEC like it is 100 years old college, PEC, and still it is surviving, it is working good. इट इज़ काइंड ऑफ एस्पिरेशन फॉर द पीपल जो हमारे लोकल या चंडीगढ़ और आसपास वाले एरिया में। तो पीईसी मतलब बेसिकली फॉर द जस्ट ऑडियंस, पीईसी इज़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। Yes. तो हमारे लिए तो वो आईआईटी के बराबर ही है, ठीक है, हमारा लोकल आईआईटी वो वही है। तो इट्स अ 100 year old college, 1924 में बना था लाहौर में। नाउ इट इज़ इन 2024। तो 100 साल बीत गए हैं और उसके बाद वो कॉलेज आपके सामने खड़ा है। सिमिलरली अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वी आर गोइंग गुड, बिकॉज वी हैव टू गिव न्यू टू द स्टूडेंट्स, वी हैव टू गिव न्यू टर्मिनोलॉजीज टू द स्टूडेंट्स। उनको इंटरेस्ट, उनको कुछ नया सिखाओगे तो नेचुरली स्टूडेंट्स भी आएंगे और आपके एजुकेशन सिस्टम भी अलाइव रहेगा। सो वी आर डूइंग नथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग like something which is not available. We are doing everything which is good for the students, and I would say it is due to the vision of our chancellor sir, Sardar Saturam Singh Sandhu ji. सो बेसिकली टू समराइज योर पॉइंट, आप कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं कर रहे हो, सिर्फ वो कर रहे हो जो रिक्वायर्ड है करने के लिए, एंड अदर पीपल्स आर मे बी मिसिंग दैट पॉइंट ऑन कि जो एक ढर्रा चला आ रहा है उसी को चला रहे, कुछ भी नया डालने की उससे निकलना पड़ेगा आपको। एक ट्रेडिशनल थिंकिंग से या ट्रेडिशनल लर्निंग से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपको आप बिलीव करेंगे इन कोरोना टाइम्स व्हेन द स्टूडेंट्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू द क्लासरूम, हमने स्टूडेंट्स को 100% दिया। उनको वर्चुअल क्लासरूम, उनको स्टडी मटेरियल, उनको इवन प्रैक्टिकल्स करवाए हमने। प्रॉम्प्टली आगे चढ़ के आगे आके जो भी चीज़ें करने की ज़रूरत है वो चीज़ की गई। देखिए बच्चे का, देखिए मैंने एक इंटरव्यू भी थी मेरी कि मुझे किसी ने पूछा कि कोरोना में आप कैसे कर पाए। मैं ये कहता हूँ, देखिए टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोरोना में ख़त्म हो गया था क्योंकि फिजिकल था ही नहीं, क्लासरूम में बच्चा आ नहीं रहा। उसके बावजूद आवर स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन अ गुड नंबर। हमारे स्टूडेंट ने स्किल्स नया सीखा और फैकल्टी इन्वॉल्व रही, स्टूडेंट इन्वॉल्व रहा। सो आई वुड से आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ, उस प्रॉब्लम में से आप अपॉर्चुनिटी निकालिए, आप नई चीज़ दीजिए स्टूडेंट्स को एक अच्छी एक्सपीरियंशियल लर्निंग देंगे तो नेचुरली स्टूडेंट्स विल लर्न। ओके, अब थोड़ा वापस हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे कि आजकल के सोसाइटी में ना, चाहे कोई पर्सन कुछ भी कर रहा है बट एवरीबॉडी इज जस्ट टू बिजी, ठीक है, मतलब दिमाग में 100 बातें, 100 चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि उसमें डेफिनेटली मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और वो हेल्प करती होंगी। तो आपका एक आज की जनरेशन जो खास करके यंग जनरेशन है उसके लिए क्या सजेशन है कि जो अभी द वे दे आर लिविंग देयर लाइफ, एंड आपकी सजेशन की यार अगर आप कुछ ये छोटे छोटे चेंजेस करते हो या फिर आप ऐड करते हो चीज़ों को तो यू विल बी एबल टू लिव अ वेरी बेटर लाइफ, पीसफुल लाइफ।
देखिए मैं तो यूथ में ही घिरा रहता हूँ, स्टार्टअप भी शुरू किए हैं, बच्चों के साथ पेटेंट्स भी किए हैं और करते भी रहते हैं। अब थोड़ा आजकल बिजी हो गया हूँ बट देखिए बात ऐसे है कि देखिए आजकल का जो यूथ है ना, उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने आजकल की बात करूँ, अपने बेटे की बात करूँ, तो मुझे शायद मोबाइल सीखने में 2 घंटे लगेंगे और उसको 10 मिनट लगेंगे। सही है। तो आजकल के बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो यूथ के लिए भी वही है कि कंसंट्रेशन देखे, पैशन देखे, एक रास्ता देखे, उसको क्या अच्छी चीज़ पसंद है, किस एरिया में वो ग्रो कर सकता है। देखिए आजकल वो तो है नहीं कि एक या तो बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, राइट। बिजनेस कर सकता है, स्टार्टअप कर सकता है, फाइन आर्ट्स में जा सकता है, अपना एक क्रिएटिव थिंकिंग में जा सकता है, यूट्यूब चैनल बना सकता है, इंस्टा पे जा सकता है, वहाँ से एडवर्टाइजिंग कर सकता है, बहुत कुछ है, वेब डेवलपिंग में जा सकता है। देयर सो मैनी थिंग्स। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यही कहूँगा यूथ अपने में चेंज करे। जो आपने मुझसे पूछा 4-5 चीज़ें, वो अपने आप को कंसंट्रेट करे, ओके। अपने अपने टारगेट फिक्स करे, क्या मुझे बनना है, क्या इसका तरीका है, और अपने आप को अननेसेसरी चीज़ों से लाइक वो ना करे, अपने आप को क्लाउडी फील ना करवाए, या अपने आप को 100 चीज़ों में अपना इन्वॉल्व ना करे। उसको ना टारगेट दिखना चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अध्यात्म में ले जाऊं तो कहते हैं कि जी सात्विक और एक असात्विक आहार होता है। आजकल हमारा यूथ थोड़ा इसको जान रहा है, कुंडलिनी चक्र एंड 7 चक्र। सो वी शुड नो डैट आप जो खाएंगे वैसा आपका व्यक्तित्व बनेगा। राइट। साइंस भी मानती है इस चीज़ को। तो आप खाएं ठीक, अपनी दिनचर्या कीजिए। एक हमारे एक बड़ी साइंस ने एक टर्म निकाली है, वैसे हमारे वेदास में काफ़ी टाइम से है, सर्कैडियन रिदम। हाँ। तो सर्कैडियन रिदम जो बात होती है उसका मतलब ये होता है, आजकल अब्रॉड बड़ी सर्कैडियन रिदम की बात होती है। और अगर आप बात करेंगे तो वेदास में है, ऋग्वेद में है सर्कैडियन रिदम। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सूरज की रोशनी चेंज होती है, वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज होता है। तो अगर आप उठी 11 बजे रहे हैं, आप उठी 1 बजे रहे हैं, रात की नाइट शिफ्ट लगा कर आए हैं, चलिए लगा ली, ओके फाइन, आप 1 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे आप खाना खा रहे हैं, फिर आप 8 बजे फिर कुछ खा रहे हैं, फिर 11 बजे आप बाहर चले गए नाइट क्लब पे, फिर आप सुबह आ रहे हैं, तो आपने अपनी पूरी रिदम ही चेंज कर ली। तो आपकी रिदम, आपकी बॉडी उतनी ईजी आपको अडेप्ट नहीं कर पाती। तो आपका रिदम चेंज हुआ, डैट मीन्स आपकी हेल्थ चेंज हुई। हेल्थ चेंज हुई तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी, कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा, आप घबराएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो दैट इज थिंग। सो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके। सो बेसिकली लिविंग विदाउट अ शेड्यूल, जिसमें Yes. कभी भी कुछ भी हो रहा है, किसी दिन 10 बजे सो रहे हो, किसी दिन 2 बजे सो रहे हो, किसी दिन रात भर ही जगे जी, रह गए, जी। तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आगे जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है दैट इज बीइंग कॉज्ड। Yes. तो आप आई कैन नॉट रिमेंबर दैट पर्सन नेम, मैं वीडियो में दिखा दूंगा आगे, कि उनका एक बड़ी अच्छी वीडियो है यूट्यूब पे। वो कहते हैं कि नॉट हैविंग अ रेगुलर शेड्यूल फॉर योर सेल्फ इज द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर योर Yes. पर्सनैलिटी। Yes. क्योंकि आप यही सर्कैडियन रिदम जो आप बात कर रहे हो, वो कहते हैं उसको ना एक पैटर्न चाहिए होता है। आप जी। एवरी डे वो पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, तो कभी भी यू विल नेवर हैव द पीस, जो एक बेस्ट स्टेट हो सकता है। ओके। Of rising, some possibility of stabilizing yourself, and a schedule and a routine, because no one can live. अभी सर आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया 2 बार स्टार्टअप के बारे में, जी। कि यू आर बीइंग एसोसिएटेड विद 2 स्टार्टअप्स। तो आप अगर उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं, सो दैट वी कैन गेट टू नो। देखिए स्टार्टअप से पहले थोड़ा सा पेटेंट पे जाना चाहूँगा। देखिए लोगों के ना अंदर एक धारणा है कि जी पेटेंट होता है, कुछ ऐसा होता है जो हुआ नहीं हुआ। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा कि एवरीबॉडी इज़ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। आपको कोई एक प्रॉब्लम होती होगी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल पे ढूंढिए, मिल गई तो प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं मिली तो सोल्यूशन बना लो, ठीक है। वो पेटेंट हो जाएगा आपका। ओके। और उस पेटेंट को अपने स्टार्टअप में डालो, ओके। कोई नई चीज़, ठीक है। और वो चल जाएगी। जैसे हमने MBA चाय वाला सुना होगा, हाँ। वो स्टार्टअप आजकल आई डोंट नो कि उसका क्या फ्यूचर है, बट एनी हाउ दुबे, मिस्टर दुबे स्टार्टेड दिस MBA चाय वाला। तो स्टार्टअप का बेसिकली ये कंसर्न है, जैसे हम अगर अपनी यूनिवर्सिटी में बात करूँ तो हमारे पास हम स्टार्टअप कल्चर में डेवलप किया है। जो आप कहते हैं हमने नया क्या किया है, हाँ। हमने स्टार्टअप कल्चर डेवलप किया है। बच्चे न्यू आइडियाज़ के साथ आते हैं, और बिलीव नहीं करेंगे आप, मैं 10-11 बजे तक बच्चों के साथ डिस्कशन होती रहती है। मैं कोरोना काल में हम जूम पे लगे रहते थे कि भैया नहीं ये आइडिया ऐसे होगा, ऐसे होगा। एंड वी फाइल्ड 6 पेटेंट्स इन द कोरोना टाइम। एंड स्टार्टअप शुरू किया, एक स्टार्टअप उस टाइम शुरू किया। तो स्टार्टअप इज़ बेसिकली द बिजनेस
It can be new idea, it can be old idea, but the way of starting can be different. Right. So आप गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकते हैं, कैसे लेंगे वो आप पे डिपेंड करता है. आप TBI के थ्रू ले रहे हैं, टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर के थ्रू ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है एक यूनिवर्सिटी में. आप किसी और टेक्निकल कोई TBI से लेना चाह रहे हैं, किसी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से लेना चाह रहे हैं, वो आप पे है. तो स्टार्टअप, इफ़ आई विल से, क्या है स्टार्टअप आपका एक आइडिया है जिसे हम नॉर्मली ड्रॉप आउट से जोड़ देते हैं. ठीक है. बिल गेट्स आर ड्रॉप आउट्स, देन स्टीव जॉब्स वाज ड्रॉप आउट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रॉप आउट ही करना है फिर स्टार्टअप चलेगा. आप करते करते कर सकते हैं, अपनी डिग्री के बाद कर सकते हैं, पर आपको आइडिया आपको न्यू होना चाहिए जो मार्केट में चल जाए. सही है. जैसे कुल्लड़ चाय वाला एक चला था, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज अ स्टार्टअप. बिल्कुल. तो उसने एक लाइन जोड़ी थी कि मैं अपनी मिट्टी में चाय बेच रहा हूँ, और वो लोगों को टच कर गया एट स्टार्ट. बिल्कुल. सो स्टार्टअप इज बेसिकली अबाउट द बिजनेस आइडिया. राइट. आपके जो 2 स्टार्टअप आप बोल रहे हैं कि उनके वो व्हाट आर दे 2 स्टार्टअप? एक मेरा स्टार्टअप है जी फार्मर्स के साथ. आपको पता होगा कि फार्मर्स जब कुछ मतलब उस टाइम फार्मर एजुटेशन चल रहा था, तो विच जस्ट थॉट आप किसी कंपनी से सीड्स लेते हैं, मान लीजिए. हाँ. आपको कंपनी कहती है ये हम आपको सीड्स दे रहे हैं और आप इसे ग्रो कराइए, और जो इसकी आप कल्टीवेशन करेंगे, जो इसका आउटकम आएगा वो हम आपसे खरीद लेंगे और आपको पे करेंगे. ठीक है. ये चल सकता है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, कंपनी फार्मर्स कहता है जी मैं सीड्स अपने हिसाब से ले लूँगा. ठीक है. कंपनी लास्ट में कहती है मैं नहीं खरीदती. तो उसने ग्रो भी किया और इन्वेस्टमेंट भी लगाई, वो जीरो. ठीक है. फार्मर नुकसान में, कंपनी भी नुकसान में. हम उसके बीच में आए एज ए इंटरमीडिएटर. ठीक है. कि जो सीड्स कंपनी देगी उसको हम चेक करेंगे, किस फार्मर को देना है और वो उसकी क्वालिटी क्या है वो हम चेक करेंगे, और वो भी एज पर स्टैंडर्ड्स, एंड देन वी विल एंश्योर कि आप दोनों के बीच में लैग ना हो. ओके. ओके. सो बेसिकली यस, एग्रीगेशन हो रहा है 2 चैनल्स के बीच में. बेसिकली कंपनी को पता नहीं था किस फार्मर से लेना है, फार्मर को नहीं पता था किस कंपनी से लेना है. उस ऑथेंटिकेटेड कंपनी के सामने ऑथेंटिकेटेड फार्मर जोड़ दिए, दैट्स इट. ओके. एंड वी कम इन बिटवीन, दैट्स अ स्टार्टअप. नेम ऑफ द स्टार्टअप इज एग्रो इंडस्ट्री. एग्रो इंडस्ट्री. ओके. ओके. It's with the name of the actually my students only. अच्छा. One was Gurjot and one was Pranshul. Okay. So we name it KGP. Kamal with my name, Gurjot with their name, and P with Pranshul name. So KGP Agro Works. अच्छा. ओके. ओके. मेडिटेशन और योगा अलग है या एक ही है या फिर रिलेटेड है? ये एक पद्धति है. योगा इज अ वे. ओके. सो मेडिटेशन को लोगों ने थोड़ा सा ऐसा ले गया कि जी हम भगवान को आंखें बंद करेंगे और भगवान से सीधा हमारा साक्षात्कार हो जाएगा, अगर मैं हिंदी की बात करूं. तो साक्षात्कार होना तो देखिए अलग चीज़ है, बट हाँ आपको ये है कि योगा एक पद्धति है. जैसे हम कर्म योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं. मैं श्रीमद् भागवत गीता से बात कर रहा हूँ. कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग. तो योगा एक पद्धति है. आप किस वे से जाना चाहते हैं, आसन करना चाहते हैं कर लीजिए, पद्मासन, शवासन, बहुत आसन है, और वो करते करते आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, तो आप मेडिटेशन कर पाएंगे. ओके. जैसे मैं भी पीछे सुन रहा था कि ब्रह्मचर्य की बात करते हैं एक. अब आप में ब्रह्मचर्य नहीं है. जैसे आजकल हम यूथ को कहते हैं कि जी आप बहुत कंसंट्रेशन रहिए, आप मोबाइल पे कुछ भी देख सकते हैं. हमारे पास मोबाइल का एक यंत्र है, बहुत अच्छी चीज़ है. इस पे आप संकीर्तन भी देख सकते हैं, इस पे आप नाइट क्लब की एक्टिविटीज भी बहुत कुछ देख सकते हैं. एवरीथिंग इज अवेलेबल. जैसे पॉडकास्ट हम अच्छी बातें कर रहे हैं तो लोग देख सकते हैं. हाँ. तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं. इसी तरह अगर आप ब्रह्मचर्य करे बिना, मतलब आपकी बॉडी कंट्रोल्ड है नहीं, आपकी बॉडी भी कंट्रोल नहीं है, आपका माइंड भी कंट्रोल नहीं है, और आप कहते हैं हम मेडिटेशन करेंगे, तो जो लोग करना चाहते हैं करके देख लीजिए. आपके दिमाग में वो कुछ आएगा कि आप आंखें खोल लोगे. बिल्कुल. यार क्या दिख रहा है. सही है. सो बेसिकली वॉट एवर इज गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. तो योगा एक पद्धति है कि आप अपने पहले बॉडी को कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद आप चलिए मेडिटेशन की तरफ. आपका मन ईजिली लग जाएगा, या आप इजीली कंसंट्रेशन कर लेंगे. अगर आप अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं भी कर रहे हैं, तब भी कंसंट्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन एनी वर्क. किसी भी चीज़ में. ठीक है. तो उसके लिए आपको अपने बॉडी को तो माइंड को तो कंट्रोल करना पड़ेगा. बिल्कुल सर. बिल्कुल. लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एक पर्सन मेडिटेशन तो करता है जी, लेकिन सारी कोशिश के बावजूद भी कर नहीं पाता. तो जो आपने बताया कि
वो ध्यान मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री है एंड ऑल, उसके अलावा और कुछ जैसे किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जाके आप करो जी। या कुछ प्रैक्टिस फॉलो करके करो, जैसे आपने वो डॉट ऑन द वॉल जी, वाली जी, चीज़ जी, बताई, जी। तो कुछ एक इजी वे। मैं तो ये कहूँगा मेडिटेशन तो आप गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते हो, पर हाँ गाड़ी चलाते हुए आंखें मत बंद कर लेना। इट्स बेसिकली मेडिटेशन इज़ बेसिकली कि आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। अब ठीक है। कईयों को बुक पढ़ के मेडिटेशन रिलैक्स होता है, वो उनके लिए मेडिटेशन है। कईयों को मूवी देख के रिलैक्स होता है, वो उनके लिए मेडिटेशन है। ओके, कईयों को कहीं घूमने में रिलैक्स होता है, कहीं हिमाचल पे चले जाते हैं। सो बेसिकली या मेडिटेशन इज इट्स नॉट जस्ट जस्ट अ वे सिटिंग टू इन एंड रिलैक्स। क्लोजिंग योर आईज। या ठीक है। बट यस, वो त्राटक वाली जो हम बात कर रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल वे है। ओके। उससे आपकी आंखों की आई साइट बढ़ जाएगी, उससे बहुत कुछ और हो जाएगा। बट यस, दैट इज़ वन वे। बट मेडिटेशन इन माई परस्पेक्टिव, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माई प्रैक्टिसेस और जो जितना टाइम मुझे हुआ है, मैं यही कहूँगा कि मेडिटेशन इज़ वे टू रिलैक्स ओके। एंड दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपका माइंड रिलैक्स है, सिंक्रोनाइजेशन हो रखी है आपकी बॉडी और माइंड के अंदर, यू कैन अचीव एनीथिंग। ओके। 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 एनी जैसे आप साइंस और रिलीजन एंड अध्यात्म सब चीज़ों को जान रहे हैं, जी। कुछ बुक्स आप अगर सजेस्ट कर सके हमारे लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी, जिसके थ्रू दोनों चीज़ मतलब डेली लाइफ को भी और थोड़ा सा अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए अगर जी। वो हेल्प कर सके, तो इफ़ एनी बुक्स। जी, मैं ये कहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता से ऊपर कोई बुक नहीं आपको मिलेगी जो आपको तीनों चीज़ से जोड़ दे। ओके। मैं तो इवन ये आपको कहूँगा, आप ट्राई कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, और ये ट्राई करके दीजिएगा, मैंने किया है। आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपने कुछ नहीं करना। आपको भगवद गीता ना हिंदी समझ आ रही है ना संस्कृत समझ आ रही है, आपने सिर्फ खोलनी है, ठीक है। जहाँ मर्जी से खोल लेना। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपने पहले पेज से खोलनी है, आपने जो उसको ओपन करना है, एंड यू विल रीड दैट पर्टिकुलर पेज, यू विल गेट अ सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। एनी रैंडम पेज। यस, ट्राई इट। बट यस, दैट शुड बी देयर। आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम ये ना हो कि आपके माइंड में 10-15 प्रॉब्लम चल रही हैं। मिक्सअप नहीं होना चाहिए। यस, कीप वन प्रॉब्लम इंटैक्ट विद यू। ओके। बैठिए, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता लीजिए अपने हाथ में, उसको खोलिए, श्रीमद् भगवत गीता को थोड़ा सा ध्यान लगाकर कहीं कोई भी पेज खोलिए रैंडमली, वट एवर द पेज यू विल गेट, you will be able to relate the problem yes, which you are you having will get and a solution in that on that particular page, indirectly or directly. Okay, phenomenal. So you can try it whenever you will get try it and you will get a solution. But हाँ, अब वो आपको as it is form में नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको ऐसे आएगा कि भगवान श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं, वो जो आप पढ़ोगे उससे आपका सोल्यूशन निकल आएगा। आपको समझ आना चाहिए किसी चीज को जी। इंटरप्रेट कैसे किया जाना जी। चाहिए। ओके, लास्ट सर, any suggestion you would like to offer to the audience which are looking and watching this podcast? See, I am very small enough to give any kind of suggestion. Well, anyhow, but what I will say that please start understanding your life. Okay. हमारे एक स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजन में या श्रीमद् भगवत गीता में, श्री भागवतम में, हम बेसिकली अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। मतलब साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि आफ्टर बर्थ जो होता है, या जो रीबर्थ होता है, या आप किसी और क्रिएचर के फॉर्म में दोबारा बर्थ ले रहे हैं, वो टोटली आप पर है। ठीक है। दैट मीन्स दिस लाइफ इज़ वेरी स्मॉल। हाउ यू वांट टू क्राफ्ट दिस लाइफ, how you want to live this life, how you want to end this life, totally in your hands. Okay. So be concentrate, be clear in your thoughts, be respect your parents, because परमात्मा तो आपको सुख दुख दोनों देगा, पर आपको पेरेंट्स आपको सिर्फ सुख देंगे। राइट। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि पेरेंट्स भगवान से भी ऊपर है। हाँ। सो दैट्स वाई रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सी योर सराउंडिंग्स, हेल्प समवन विद योर गुड एबिलिटी। ऐसा नहीं है आपका 100 रुपये, आप 100 रुपये दे के आ रहे हो, घर आके आपको घर वाले गाला निकाल रहे हैं। हेल्प देम विद अ गुड काइंड ऑफ एबिलिटी। यस, एबिलिटी। और ऐसा भी नहीं आपके पास 100 रुपये हैं या 50 के, आप दे के फिर घर आके करो कहाँ दे दिए यार, देने नहीं चाहिए थे, पछताना। सो यू गिव इफ यू हेल्प समवन, बट यस, हेल्प देन फॉरगेट। ओके। अननेसेसरी इफ यू आर टेलिंग समबडी, मुझे आजकल बड़ा थोड़ा वो लगता है, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ
कि आप किसी को कंबल दे रहे हो फिर फोटो खिंचवाते हो, हाँ फिर आप एक इमेज वो लगाते हो सेल्फी और वो फेसबुक पे लगा देते हो, इंस्टा पे लगा देते हो, लिंक्डइन पे लगा देते हो, फिर और जगह भेजते हो कि देखो जी मैंने क्या किया। बिल्कुल वो हमने कुछ नहीं किया, फिर वो हमने जो करना चाह रहे थे वो भी शुरू कराए। तो इट्स बेटर दैट यस हेल्प समवन, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, clear in your thoughts and achieve something in your life so that whenever you are entering your name on Google, this I tell to my students also, that I normally tell my name, that's it. I said enter in Google Dr. Kamal Kant Sharma or Kamal Kant Sharma. If you are seeing something significant, राइट मतलब आप एंटर करो गूगल में, कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अपना नाम एंटर करें गूगल पे और उनको कुछ दिख गया, दैट मीन्स यू डिड समथिंग इन योर लाइफ। अदरवाइज लोग आते हैं लोग जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। बिल्कुल सर, तो नेकी कर और दरिया में डाल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो सर। इट वाज रियली एन ऑनर टू स्पीक विद यू एंड हैविंग यू ऑन द शो। थैंक्स अगेन एंड आई होप कि हम दोबारा जल्दी कनेक्ट करेंगे। और जहाँ से अभी हमने बात रोकी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी, बट ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइम यू आर अ बिजी पर्सन, सो हम अभी के लिए इसको विराम देते हैं, बट हम दोबारा बात करेंगे एंड चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Thank you. Pleasure is all mine. And it would be love to come on your show. Thank you. थैंक यू सर। चाहे हमारे सारे अंग बिल्कुल ठीक हों शरीर के, लेकिन अगर हम देख ना सकें या हमारी आंखें ठीक से काम ना करती हों तो ज़िंदगी में एक अंधेरा छा जाता है। ग्लूकोमा किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा पाया जाता है? ग्लूकोमा किसी भी एज में हो सकता है। ग्लूकोमा जन्म पे ही बच्चे में हो सकता है। ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे लोग जो है ना बाहर जाते टाइम जी लेंसेज का बड़ा यूज़ हमने देखा है लोगों करते हुए। पर्सनली एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई डोंट रेकमेंड कॉन्टैक्ट्स। ओके, जैसे